Assalamualaikum viewers. Now we will discuss the topic of elements. First of all, we will discuss the history of elements. In the early ages, only nine elements, carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron and sulfur. Only 9 elements were known. मीन्स के सबसे पहले सिर्फ हम 9 एलिमेंट्स को जानते थे जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए. एंड वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट. At that time, it was considered that elements were the substances that could be broken down into similar units by ordinary chemical process. उस ज़माने में ये समझा जाता था कि आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, उनको हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी स्मॉलर या सिंपलर यूनिट्स पे किसी भी केमिकल प्रोसेस के तहत. उस वक्त ये सोचा जाता था. And we discuss this third point. Until the end of 19th century, 63 elements had been discovered. Means कि जब 19th century ख़त्म होने पे थी तो आपके पास 63 elements discovered हो चुके थे. And the fourth point is now 118 elements. 118 elements have been discovered in periodic table, out of which 92 are naturally occurring elements and the remaining elements are laboratory prepared elements, and the total elements is 118 and 92 elements are naturally occurring. मीन्स जो अब आपके पास हैं 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 92 आपके पास नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती पाए जाते हैं, एंड जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आपके पास प्रीपेड हुए हैं, तो लेबॉर्ट्रीज़ में हुए हैं, या आपके किसी भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कोई आप केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके तहत ये डिस्कवर्ड हुए हैं. एंड वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. व्हाट इज़ एलिमेंट? It is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. मीन्स एलिमेंट एक ऐसी शय है आपके पास जो सेम एटम से मिलके बनी होती है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम रहता है, तो उसको हम मज़ीद केमिकल डिकम्पोज नहीं कर सकते. मीन्स जैसे कार्बन है आपके पास, कार्बन का एक एलिमेंट है, कोई भी शय बनी हुई है तो वो सिर्फ कार्बन की है, ठीक है. उसको हम मज़ीद कार्बन में से और उसको ब्रेक करके कोई न्यू एटम्स और डिस्कवर नहीं कर सकते, उससे हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं. मीन्स अगर मैं एग्जांपल इधर डिस्कस करूँ आपके पास एलिमेंट्स की, आप कोई भी इधर एग्जांपल ले सकते हो. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, that are the symbols of atoms. N means nitrogen, O means oxygen and H means hydrogen. And now we discuss the properties of elements. First is elements occur in nature in free or combined forms. जो elements हैं वो freely form में भी पाए जाते हैं या combined form में पाए जाते हैं, मीन्स दो या दो ज़्यादा atoms इकट्ठे भी मौजूद होते हैं. Each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties. मीन्स जो भी एलिमेंट है वो यूनिक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिक मीन्स प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड यूनिक टाइप ऑफ एटम्स. मीन्स यूनिक का मीन्स आप सिंगल भी ले सकते हो, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है. नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. Now we discuss the solid examples. What are the examples of solid? First is sodium, second copper and third is zinc. Means sodium, copper, zinc are in the form of solid. And example of liquid is mercury and bromine. Mercury is used in thermometer. Okay. And gas, nitrogen, oxygen and hydrogen gas are the examples of elements. And we discuss the elements are divided into metals, non-metals and metalloids. जो एलिमेंट्स हैं आपको उनको डिवाइड किया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में. नाउ वी आस्क मीन्स नाउ यू राइज द माइंड ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट इज मेटलॉइड्स. आई टेल यू व्हाट इज मेटल. Metal means
that the current pass through the atoms are called metals, and metals have low ionization energy, means first three groups in periodic table are metals, and the last three groups in periodic table are non-metals, and the fourth group of periodic table are called metalloids. Metalloids means that the not insulator, means not non-conductor, not a conductor, means the between stage of metals and non-metals are called metalloids. And the example of metalloids is, the best example of metalloids is carbon and silicon. And the non-metals means that have no conductor of electricity are called non-metals, and non-metals have high ionization energy. About 80% of metals are about 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, मीन्स जो आपके पास एलिमेंट्स हैं 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। मैं उर्दू में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बता देता हूँ। मेटल्स जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। इसकी लो की होती है, हम ये ना आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं उसमें कंडक्ट कर भी सकती इलेक्ट्रिसिटी एंड नहीं भी करती, ठीक है, उसे मेटलॉइड्स कहते हैं। नॉन मेटल्स का जिसमें से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होती है। नाउ वी डिस्कस द नेचुरल अकरेंस ऑफ दिस एटम्स। फर्स्ट, अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड एटमोसफेयर। फर्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज़ 47% in earth crust, and oxygen has 86% oxygen, and in atmosphere has 21%, and silicon 28%, hydrogen 11%, nitrogen 78%, and aluminium 7.8%, chlorine 1.8%, and argon is 0.9%। मीन्स जो आपके पास जो तादाद है ना किसी भी जो एटम्स की है वो कितनी किस में पाई जाती है हमने टोटल टेबल में शो कर दिया है। नाउ वी हैव फिनिश दिस टॉपिक। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।